السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام دینی و فقہی مسائل، جس میں آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں جامعہ اشرف کے باوقار و باصلاحیت استاذ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ، جن سے ہم آج دینی کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ہاں تو مفتی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا آفتاب احمد صاحب، آپ نے ہندوستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا اب تک ہندوستان دارالاسلام ہے یا ہندوستان جو ہے دارالاسلام نہیں ہے۔ اس کے متعلق جو ہے علماء اکرام کی متعدد رائے ہے۔ کسی نے ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا، کسی نے جو ہے دارالامن، کسی نے دارالدعوہ قرار دیا ہے نا۔ جب گہری نظر ڈالی جاتی ہے فقہی عبارتوں میں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان جو ہے ابھی تک دارالاسلام ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں طویل مدت تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، مسلمانوں کا تسلط رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے دور حکومت میں جمعہ، عیدین، اذان، نماز باجماعت وغیرہ شعائر اسلام اور دوسرے اسلامی احکام اعلانیہ طور پر جاری تھے۔ کسی بھی دارالحرم میں تسلط قائم ہونا اور اس میں اسلامی احکام کا جاری کرنا اس کو دارالاسلام بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی دارالحرب دارالاسلام کب ہوگا؟ جب اس میں اسلامی احکام کو نافذ کر دیا جائے، تو اسلامی احکام کے نافذ ہونے کے بعد وہ دارالحرب جو ہے دارالاسلام بن جاتا ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، اجمع العلماء علی ان دار الحرب عند ظہور المسلمین علیہا تصیر دارالاسلام باجراء احکام المسلمین فیہا علی سبیل الاشتہار۔ یعنی علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ دارالحرب پر مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہونے کے وقت دارالحرب اس میں شہرت کے طریقے پر اسلامی احکام جاری کرنے سے دارالاسلام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ہے، اعلم ان دار الحرب تصیر دارالاسلام بشرط واحد وہو اظہار احکام الاسلام فیہا۔ یعنی تم لوگ جان لو کہ دارالحرب ایک شرط کے سبب دارالاسلام ہو جاتا ہے، وہ شرط اس میں اسلام کے احکام کو جاری کرنا ہے۔ ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی شہر کے دارالاسلام ہونے کے لیے وہاں مسلمانوں کا تسلط اور وہاں اسلامی احکام کا جاری کرنا شرط ہے، لیکن اس شہر کے دارالاسلام برقرار رہنے کے لیے مسلمانوں کے تسلط کا برقرار رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں اسلامی احکام کا اعلانیہ طور پر جاری رہنا یہ دارالاسلام برقرار رہنے کے لیے شرط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک دارالاسلام 3 شرطوں کے پائے جانے کے وقت دارالحرب ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں کافروں کے احکام اعلانیہ طور پر اس طرح جاری کیے جائیں کہ مسلمانوں کے احکام کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دارالحرب سے اس طرح متصل ہو جائے کہ اسلامی شہروں میں سے کوئی شہر بیچ میں حائل نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے وہ امان باقی نہ رہے جو غیر مسلم کے غلبہ سے پہلے مسلمانوں کے لیے اس کے مسلمان ہونے کے سبب اور ذمیوں کے لیے عقد ذمہ کے سبب تھا۔ یہ 3 شرائط ہیں کسی دارالاسلام کے دارالحرب بن جانے کے لیے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فی الزیادات انما تصیر دارالاسلام دار الحرب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بشروط ثلاثہ
अहदुहा इजराउ अहकामिल कुफ़ार अला सबील इश्तिहार वान ला युहकम फ़ीहा बिहुक्मिल इस्लाम वस्सानी अन तकून मुत्तसिलतम बेदारिल हर्ब वला यतखल्ललु बैनहुमा बलदुम मिन बलादिल इस्लाम वस्सालिसु अन ला यबका फ़ीहा मोमिनुन वला ज़िम्मियुन आमिनन बे अमानिहिल अव्वल अल्लज़ी कान साबितन क़ब्ल इस्तिलाइल कुफ़ार लिल मुस्लिमी बि इस्लामी वलिज़िम्मी बि अक़दि ज़िम्मा। यानी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियादात में लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक दारुल हरब 3 शर्तों के सबब दारुल इस्लाम हो जाता है ना। उनमें से एक शर्त जो है 3 शर्तों के सबब जो है दारुल इस्लाम दारुल हरम हो जाएगा। उनमें से एक शर्त कुफ़ार के अहकाम का इस तरह शोहरत के तरीके पर जारी होना है कि उसमें इस्लाम के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला न किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि दारुल हरब से इस तरह मुत्तसिल हो जाए कि उन दोनों के बीच इस्लामी शहरों में से कोई शहर वाक़ ना हो। तीसरी शर्त यह है कि उसमें किसी मुसलमान के लिए और ज़िम्मी के लिए पहले अमान के सबब अमान बाकी ना रहे जो मुसलमानों के उसके मुसलमान होने के सबब और ज़िम्मियों के लिए अक़द ज़िम्मा के सबब पहले साबित था, है ना। इन शराइतों को मलहूज़ रखते हुए अगर हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल और आज़ादी के बाद की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो ये बात मुतहक्कक हो जाती है कि हिंदुस्तान में दारुल हरब होने के तीनों शराइत नहीं पाए गए कभी भी। हिंदुस्तान में शायर इस्लाम और इस्लामी अहकाम हर दौर में जारी थे। आज़ादी से कबल बरतानवी हुकूमत मुसलमानों के हक़ में इस्लामी कानून के मुताबिक फ़ैसला करने पर मजबूर थी और आज़ादी के बाद मुसलमानों के हक़ में इस्लामी कानून के मुताबिक फ़ैसला करना हिंदुस्तान का दस्तूर असासी है। यहाँ की हुकूमत मुसलमानों के हक़ में इस्लामी कानून के मुताबिक ही फ़ैसला करती है। मुसलमान और दीगर अक़वाम के लिए जो अमन व अमान मुसलमान के दौरे हुकूमत में था वो अमन व अमान मुसलमान की हुकूमत के ज़वाल भी हर हुकूमत के आइनी दस्तूर में रहा है और हर हुकूमत ने अमन व अमान को बहाल करना अपना आइनी फरीज़ा समझा है। सिर्फ गैर मुस्लिमों के गालिब हो जाने और कुफ्र के अहकाम के जारी कर देने के सबब दारुल इस्लाम दारुल हर्ब नहीं हो जाएगा, बल्कि कुफ़ार के गलबा और अहकाम कुफ्र के जारी होने के साथ तीनों शराइत का पाया जाना दारुल हर्ब होने के लिए ज़रूरी है। फतावा आलमगीरी में तीनों शराइत के बाद मज़कूर है व सूरतुल मसलत अला सलासत औजह इम्मा अयगलबा अहलुल हर्ब अला दारिम मिन दूरना और अविर तद्दा अहलो मिस्रिन व गलबू व अजरू अहकामल कुफ्र और नकज़ा अहलु ज़िम्मतिल अहद व तगल्लबू अला दारिहिम फ़ी कुल्ल मिन हाज़िहि सुवर ला तसीरो दारुल हर्ब इल्ला बिसलासते शुरूत। यानी मसला की सूरत 3 तरीके पर है, या तो हर्बी हमारे दारुल इस्लाम में से किसी दार पर गालिब हो जाएं या शहर वाले मुर्तद हो जाएं और कुफ्र के अहकाम को जारी कर दें, या ज़िम्मी अहद को तोड़ दें और दारुल इस्लाम पर इस तरह गालिब हो जाएं कि मुसलमान का हुक्म बाकी ना रहे। इन तीनों सूरतों में दारुल इस्लाम के दारुल हर्ब बनने के लिए तीनों शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। तीनों शराइत के सबब ही जो है दारुल इस्लाम दारुल हर्ब होगा। इन इबारतों से यह बात वाज़ेह होती है कि हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम का तसल्लुत होना और कुफ्र के अहकाम का जारी करना उसको दारुल हर्ब नहीं बनाएगा, इसलिए कि इस्लामी अहकाम आज तक एलानिया तौर पर जारी हैं। हुकूमत मुसलमानों के हक़ में इस्लामी कानून के मुताबिक ही फ़ैसला करती है। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह ताला के नज़दीक दारुल इस्लाम सिर्फ एक शर्त के पाए जाने के सबब दारुल हर्ब हो जाता है, वो शराइत एलानिया तौर पर कुफ्र के अहकाम का जारी होना है। फतावा आलमगीरी में है काला अबू यूसुफ व मोहम्मद रहमुल्लाह ताला बेशर्त वाहिदत ला गैर
वहुवा इजहार अहकामिल कुफ्र, यानी साहिबैन के नज़दीक कुफ्र के अहकाम के इजहार से मुराद कुफ्र के अहकाम का एलानिया तौर पर इस तरह जारी होना है कि मुसलमान के अहकाम जारी न किए जाएं। अगर इस तरह जो है कुफ्र के अहकाम जारी हो गए कि मुसलमान का कोई हुक्म जारी नहीं होता, तब साहिबैन के नज़दीक जो है दारुल इस्लाम दारुल हरब बन जाएगा। अगर अहले कुफ्र के अहकाम के साथ मुसलमानों के अहकाम जारी हैं तो इन दोनों हजरात के नज़दीक भी दारुल इस्लाम दारुल हरब नहीं होगा। अल्लामा शामी ने दुर्र मुख्तार की इबारत बेइजराए अहकाम अहल शिरक के तहत रद्दुल मुहतार में लिखा है, ऐ अलल इश्तिहार अल्लाह युहकम फीहा हुक्म अहलिल इस्लाम व ज़ाहिरुहु अन्नहु लौ उजरियत अहकामुल मुस्लिमीन व अहकामु अहल शिरक ला तकूनो दारुल हर्ब। यानी इस इबारत का मतलब ये है कि साहिबैन के नज़दीक दारुल इस्लाम दारुल हरब उस वक्त होगा जबकि कुफ्र के अहकाम इस तरह जारी किए जाएं कि मुसलमान के अहकाम बिल्कुलिया जारी नहीं हों। तो लिहाजा दारुल इस्लाम दारुल हरब साहिबैन के नज़दीक उस वक्त होगा जब उसमें अहले कुफ्र के अहकाम का इस तरह गलबा हो कि मुसलमान के अहकाम जारी न किए जाएं। हिंदुस्तान में अगरचे गैर मुस्लिम के अहकाम जारी हैं, लेकिन मुसलमानों के तमाम मामलात में इस्लामी अहकाम भी जारी किए जाते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान साहिबैन के कौल के मुताबिक भी अभी तक दारुल इस्लाम है। अगर बिलफर्ज हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दे दिया जाए तो यहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह जाना फ़र्ज हो जाएगा। हालांकि कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता है। इससे यह बात वाज़ेह होती है कि जिस तरह पहले दारुल इस्लाम था, आज भी हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। सुभान अल्लाह।